الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ النساء آیت نمبر 84 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 85 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ دوہرا لیجیے تھوڑا سا، سورہ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاشرتی احکامات دے رہے ہیں، معاشرتی سطح کے احکامات بتا رہے ہیں، اور مختلف جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں ان سے بچنے کے کچھ انداز اور طور طریقے جو ہیں وہ مسلمانوں کو سکھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی تو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جو جبت اور طاغوت سے جو منع کیا تھا اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی کرنے سے کوئی چیز ہو جاتی ہو، کسی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہو۔ اللہ نے عقیدہ درست کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو برائی بھی تجھے آتی ہے وہ تیرے اپنی کسب عمل کی بدولت ہوتی ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں آتا۔ تو ہر انسان کے گلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا شگون جو ہے وہ لٹکا کے رکھا ہے، لیکن بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم نے رویہ دیکھا تھا کہ خواہ پھر انسان تکبر، فخر اور گھمنڈ کا شکار نہ ہو، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے تو پھر وہ اللہ کا احسان مند ہو، اللہ کا شکر گزار اور مزید اطاعت گزار بندہ بنے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس زمانے کے لوگ بلیم گیم کھیلتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ نبی کے ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ساری مشکلات آتی ہیں، تو بتا دیا گیا تھا اور کہہ دیا گیا تھا کہ کسی نیک انسان کی وجہ سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آتی۔ وہ تو ایک اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، اور ان کو کسی کے اوپر نگران پاسبان بنا کے نہیں بھیجا۔ نبی کے جانے کے بعد نبوت کی یہ ذمہ داری یا لوگوں کو اللہ کی باتوں کو پہنچا دینے کا کام کون کرتے ہیں؟ علماء کرتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں جو انبیاء کے نائب، جن کو کہا گیا کہ علماء جو ہے وہ جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے وہ علماء انبیاء کے نائب ہیں، اور جب وہ یہ آگے باتیں پہنچاتے ہیں تو ان کا کام صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو آگے پہنچا دیا جائے، وہ کسی کے ان کی باتیں آگے کرنے کی وجہ سے وہ کسی کے اوپر نہ وبال لانے کا ذمہ دار ہوتے ہیں اور نہ کسی کے اوپر ان کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ ان کو بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ لنک کر دیا تھا اپنی اطاعت کو، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہ جو ادھر ادھر سے تم خبریں سن لیتے ہو ان کو خواہ مخواہ پھیلایا مت کرو۔ افواہ رسانی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ خواہ مخواہ معاشرے کے اندر پینک کریٹ ہو جائے، اور اگر کوئی ایسی خوفناک یا کوئی ایسی خبر ملتی ہے جس سے خوف پیدا ہو سکتا ہے تو کیا کرو، اس کو معاشرے کے ذمہ دار اصحاب تک وہ باتیں پہنچاؤ تاکہ اس کا سد باب کیا جا سکے اور عوام الناس تک وہ پینک کریٹ کرنے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو پھر اس کے بعد یہاں جو ہم نے آگے بتایا آج کی جو سبق میں ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، کسی کے پاس اثر و رسوخ ہوتا ہے، کسی کے پاس اثر و رسوخ نہیں ہوتا، لیکن دنیا کا ایک وہ ہے قانون ہے جو اس طرح سے چل رہا ہے کہ جہاں کہیں کوئی پاور ہوتی ہے، جہاں کوئی اثر رسوخ ہوتا ہے وہاں پر کام آسان ہو جاتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے کہ جی کوئی جان پہچان نہیں ہوتی یا لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں تو ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر معاشرے کے اندر اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم مومنوں کے لیے یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور
भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन किया करो। और हुक्म दिया गया है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, और गुनाह और ज्यादती के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करना। तो अल्लाह ने मोमिनों को ये कह दिया है कि वो है ना कि जो हल्का यारा में हो, जो हल्का यारा में हो, बरेशम की तरह नर्म, जो रिज़्क़ में हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो रेशम की तरह नर्म होगा वो किसमें? हल्का यारा में। जितने मोमिन हैं उसके आस पास हैं, उसको जरूरत है, वो नेकी के भलाई के कामों में वो उसका साथ भी देगा, उसका साथ ताउन भी करेगा। जहाँ कहीं उसको लगेगी कि इसको मदद की जरूरत है, इसको कोई आपके लिए कोई ऐसा ताउन की जरूरत है जहाँ सिफारिश करने का मामला आ जाएगा, तो वहाँ वो भी करने के लिए उसके लिए तैयार हो जाएगा। अल्लाह ने यहाँ पर क्या हमें हुक्म दिया कि मैं यशफा शफाअतन हसनतन, जो नेकी के काम के लिए सिफारिश करेगा तो उसमें से वो हिस्सा पाएगा। अगर नेकी के काम के लिए सिफारिश करेंगे तो उसमें से हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। इसीलिए तो मोमिन को ये हुक्म दे दिया गया कि वो नेकी के कामों में ताउन करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा चुके होते थे तो कोई शख्स अगर बाद में आता तो और अपनी अकेले नमाज पढ़ना शुरू करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को फरमाते, जो नमाज पढ़ चुके होते थे उनको कहते थे कि कौन है जो उसके साथ उठ के सदका करे। ये अभी पढ़ा था ना हमने नमाज नबवी में, तो क्या है कि कौन है जो उसके साथ उठ के सदका करे, यानी अपने उस मोमिन भाई के साथ तुम अगर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे उस एक्ट की वजह से तुम्हारे मोमिन भाई को 27 गुना अजर मिल जाएगा, क्योंकि जमात की नमाज वो पढ़ लेगा। हालांकि वो जो सहाबा कराम थे वो तो फर्ज नमाज पढ़ चुके होते थे, तो उनकी वो नमाज नेकी के काम में ताउन करके उनके लिए तो वो नफिल होती थी, लेकिन जो अकेला आता था बाद में नमाज पढ़ने, उसको जमात का अजर देने के लिए वो नेकी भलाई के कामों में उसके साथ ताउन करके उसके साथ अजर कमाने का मामला कर लेते थे। उसकी फर्ज नमाज का अजर उसको मिल जाता था, इस मोमिन सहाबी को सदके का अजर मिल जाता था और नफिल नमाज का भी अजर मिल जाता था। तो हमारा दीन तो हमें ये तक भी सिखा रहा है। और फिर आप ये देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सवाली आते और आके कुछ सवाल करते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको देना होता था वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। अगर नहीं दे सकते होते थे तो उसकी तरफ भेज देते थे जो दे सकता था। वाकया आपको मैंने सुनाया था एक हजरत हाँ जी, हजरत अबू तलहा अंसारी का कि कौन अल्लाह का मेहमान बनाए इसको बनाएगा, तो कोई सहाबी नहीं उठा। हजरत अबू तलहा उठे थे कि मैं इनको जो है वो मेहमान बनाऊंगा, अपने घर ले गए। और फिर अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद आई थी कि यूसिरून अला अनफुसिहिम व कान बिहिम क़सासा, कि आयत अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नाजिल कर दी थी कि वो अपनी जानों के ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे वो खुद भूखे ही क्यों ना हो। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी बीवी ने कहा था ना, बच्चों को सुला दूंगी और मैं चराग गुल कर दूंगी और आप मुंह चबाते रहिएगा जब तक कि वो खाना ना खा ले। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई थी। इसी तरह से एक और मर्तबा भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था देने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि जाओ जाके इसको किसी भी घर में से, मदीना के घर में से खाना खिलाओ। तो सहाबी गए और जाके मुख्तलिफ घरों में खटखटा रहे थे अज़वाज मुतहरात के, किसी घर में से खाना न मिला। हजरत फातिमा के घर में जब खटखटाया गया तो उन्होंने कहा कि खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप बताया गया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने सर की ओढ़नी दी थी और कहा था कि जाओ और जाके फलां यहूदी को जाके ये सर की ओढ़नी दो और कहो कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की सर की ओढ़नी है, तो इसके इवज हमें कुछ गल्ला दे दे कि हमने अपने घर आए हुए मेहमान को खाना खिलाना है। और उनकी इस अदा के ऊपर वो यहूदी इस्लाम लेकर आ गया था कि यही तो वो लोग हैं कि जिनकी बातें हमारी तौरात में मौजूद है। सुभान अल्लाह। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद नहीं कर सकते होते थे तो सहाबा कराम के घर भिजवाते थे। हजरत उस्मान गनी का वाकया भी आपको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवाली आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कुछ नहीं था देने के लिए। आपने कहा भेजा था, जाओ उस्मान के पास जाओ, शायद वो तुम्हें कुछ मदद कर सके। और जब वो वहां पे सवाली पहुंचा तो उसने देखा कि एक शख्स जो है वो दरवाजा खटखटाने लगे हैं, तो आवाज आई कि एक शख्स अपनी
बीवी को डांट रहा है कि तो सूरज निकल आया है इतना ज्यादा और तुमने अभी तक ये चिराग गुल नहीं किया, डांट रहा है कि बेटा इतना रोशनी हो गई और घर की लाइटें क्यों जल रही हैं, क्यों जल रही है जबकि सूरज इतना ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ है, तो लाइटें बंद करो। तो वो हैरान हो गया, कहने लगा ये इतना कंजूस आदमी, ये मुझे क्या देगा जो अपनी बीवी को सिर्फ लाइट बंद ना करने के ऊपर जो है वो डांट रहा है। वापिस पलटने लगा तो हज़रत उस्मान निकल आए और जब उन्होंने पूछा वो भाई खैरियत किस काम से आए थे, वो कहने लगा कि यार के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था आपके पास, वो गले में हाथ डालते हुए जा रहे, तो बताओ तो सही खैरियत ही है वो सब। तो उन्होंने आगे से कहा कि हाँ जो है वो ये मैं इसलिए आपके पास आया था, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं गवारा किया, मैं वापस पलटने लगा। तो एकदम से वो आदमी भागता हुआ आया और आगे कहता है कि मुबारक हो उस्मान, बड़ा ज़्यादा मुनाफा हुआ है। और देखा कि एक पूरा का पूरा काफिला जो है ऊँटों से लदा हुआ वो आ रहा है और मुल्क शाम से एक बड़ा मुनाफा लेकर आए हैं। तो आप वो सबसे अगले वाले ऊँट की नकील जो है वो लेकर हजरत उस्मान गनी ने उस सवारी के हाथ में पकड़ा दी और कहा कि जाओ और ये सारा काफिला तुम्हारा होगा। सुभान अल्लाह। वो हैरान हो गया और कहने लगा कि या रसूल ये मुझे ये बात समझ में नहीं आई, एक जगह तो आप अपनी बीवी को डांट रहे हैं कि चिराग गुल नहीं किया, लाइट बंद नहीं की, इतनी कंजूसी, और दूसरी तरफ आपने पूरे का पूरा काफिला उठा के मुझे पकड़ा दिया है। मतलब तबीयत का तजाद है ना, आपकी मिजाज का तजाद है, ऑपोजिट पर्सनालिटीज नजर आ रही हैं। तो क्या बोला उन्होंने, कहा कि भाई बात दरअसल ये है कि उस चिराग का हिसाब मैंने अपने रब को देना है और इस काफिले का हिसाब मैंने अपने रब से लेना है। ये जवाबदेही का एहसास था उनको और वो ये ताउन किया करते थे, नेकी और खैर के कामों में एक दूसरे के साथ भलाई और ताउन किया करते थे। हजरत उस्मान का ही वाक़यात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए हैं तो पानी की बहुत शॉर्टेज थी और मिलता नहीं था। एक यहूदी का कुआं था जिससे लोग पानी निकाला करते थे, बड़ा आउटस्कर्ट्स में जाके भर भर के लेके आया करते थे। हज़रत उस्मान मालदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहूदी से आधी कीमत पर 10,000 दिरहम पर वो कुआं खरीद लिया। यहूदी ने कहा कि ठीक है, आधा कुआं आपका आधा कुआं मेरा, यानी एक दिन मेरा पानी का लेने का, एक दिन आपके लोग आके पानी ले। तो जिस दिन मुसलमानों का पानी लेने का दिन होता उस दिन वो आगे इतना पानी भर भर के ले जाते, स्टोर कर लेते कि नेक्स्ट डे पानी पीने के लिए उनको सफिशिएंट होता था। तो हर यहूदी से पानी लेने कोई आता ही नहीं था। तो आखिरकार वो यहूदी क्या हुआ, लॉस में जाने लगा। तो बिल आखिर उस यहूदी ने तंग आके हजरत उस्मान को कहा कि आप ऐसा करें, ये पूरा ही कुआं आप ही मुझसे ले लें और अब मैं आप ही को दे देता हूँ। तो फिर 10,000 दिनार मजीद देकर या दिरहम मजीद देकर हज़रत उस्मान गनी ने उस वक्त 20,000 दिरहम पर वो कुआं खरीदा और मुसलमानों को वक्फ कर दिया। ये है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में ताउन किया करो। तो ये वो सिफारिश है, ये वो सिफारिश है जो वो लोगों के लिए कर रहे थे। सिफारिश किसको कहते हैं वैसे? सिफारिश कहते हैं जब कोई काम ना हो सके और उस काम को करने के लिए किसी असर और रसूख को इख्तियार किया जाए। खुद से जब कोई काम नहीं हो पा रहा तो असर और रसूख इख्तियार करके उस काम को पॉसिबल बनाया जाए, उसको कहते हैं सिफारिश। तो हजरत उस्मान ने मुसलमानों के लिए अपना असर रसूख माल इस्तेमाल करके वो काम उनके लिए पानी लेना आसान कर दिया। इसी तरह हम तो सिफारिश सिर्फ इसको लेते हैं कि जी किसी के काम करवाने के लिए जैसे कि बिल जब आप कह लीजिए कि गैस का मीटर नहीं लग रहा या बिजली का मीटर नहीं लग रहा या जी वो डॉक्टर नहीं देख रहा या उसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए या उसको जॉब दिलवाने के लिए या उसको स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए फलां बंदे को की सिफारिश लगाई जाए, ठीक है। तो फलां बंदा चूंकि वो अपना असर रसूख रखता है तो हमारा ये काम करवा देगा, तो हम उसको सिफारिश कहते हैं। वो भी एक सिफारिश का अंदाज और तरीका ही है। तो गोया जब कोई काम खुद से ना हो सके और वो काम जायज भी हो, हलाल भी हो और उसको करने के लिए अगर आप किसी बंदे की सिफारिश करवाएं तो वो शरीयत में जायज भी नहीं बल्कि पसंदीदा है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे मांगने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे सहाबा कराम को, उठो सिफारिश करो और अजर कमाओ। मैंने तो जो देना है वो मैंने देना है, मैंने जो करना है वो तो मैंने करना है, तुम इसके हक में सिफारिश करके अजर कमा लो। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक खातून आती है और वो मुझे कहती है कि मेरी बच्ची का जो है वो ये बीमारी है और मैं इसका इलाज करवाना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर इसके इलाज के कह रहे हैं कि जी 2.5 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूं, तो आप इसके लिए कुछ मेरी मदद कर दें। अब मैं जिस पोजीशन पे अपने हॉस्पिटल में बैठी हूँ, वहाँ पर मेरे पास 2.5 लाख रुपए नहीं है कि मैं उस पेशेंट का इलाज करा दूँ, बट आई नो समवन जो, या मैं 3-4 लोगों को जानती हूँ जो रेडी है पैसा देने के लिए, तो मैं उस जेन्युइन केस को लोगों के पास बताऊं और कहूं फलां केस है, उसके लिए हेल्प कर दें कुछ, वहां से 40,000 मिले, किसी ने 2 लाख रुपए दे दिए, किसी ने 10,000 रुपए दे दिए, 2.5 लाख रुपए जमा हो गए, ठीक हो गया, और उस बच्ची का इलाज हो गया। तो पैसे तो मैंने नहीं दिए थे, सिफारिश कर दिया, लेकिन मैंने किसी को जाके रिक्वेस्ट कर दी और मैंने उस जेन्युइन केस के लिए कलेक्शन करवा के उसका इलाज करवा दिया। तो ये क्या है, जो अजर देने वाले को मिला वही सिफारिश करने वाले को। सुभान अल्लाह। जायज और हलाल कामों के लिए सिफारिश करवाना हमारे दीन में जायज ही नहीं बल्कि पसंदीदा है, किया करें। लोग नहीं करते और कहते क्या कहेंगी कि हर वक्त जो है वो पैसे मांगने आ जाते हैं। पैसे लेने के लिए नहीं करें, अपने अजर का सौदा करने के लिए करें, ये आपको उसका अजर मिल जाएगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को खड़ा करवाते थे, उठो कौन करेगा इसकी सिफारिश, जो सिफारिश करेगा वो अजर कमा लेगा। जॉब नहीं मिलती, सिफारिश से वो दूसरा लेगा। अब आप ये देख लीजिए, अभी ये बात आपकी, जल्दी कर लीजिए। हाँ, मैं ना कुछ शादी वगैरह कराती हूँ, शादी मतलब कि आपके क्या रहता है, मेरी बेटी की शादी है, तो हमारी कमेटी पार्टी में सबसे कहती हूँ कि 500 बेशक दो, लेकिन 2 अपना हिस्सा डालो, और मैं ज़बरदस्ती लेती हूँ। बाद लोगों को शर्म आती है कि मुझे नहीं शर्म आती, क्योंकि आपने नहीं मांगी, अल्लाह की मांग रही है, आपकी जन्नत का घर बना। अब देखिए ये वो है कि जेन्युइन केस इनको पता है कि जहाँ अगर किसी की बच्ची की शादी करवा रही है, या किसी का कारोबार सेट करवा रहे हैं, या किसी का इलाज करवा रहे हैं, या किसी को जॉब दिलवा रहे हैं, या किसी की जो है वो एडमिशन करवा रहे हैं, आपको मालूम है कि वो बंदा डिजर्विंग है, अगर वो उसका नहीं किया गया तो कोई दूसरा आके उस जगह पर बैठ जाएगा। अभी उन्होंने मुझसे ऐसी बात की कि कई दफा ऐसे होता है कि नाहक लोग चले जाते हैं वहां पर, दूसरे के मतलब उसका हक नहीं बनता, वो उतना केपेबल नहीं है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, पैसे खिलाकर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके आप क्या करें, अपने बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा लें, जबकि आपका बच्चा इस काबिल ही नहीं हो कि वो मेडिकल में पढ़ने वाला हो या आगे जाके वो काबिल निकले, तो आप क्या कर रहे हैं, ये गुनाह और ज्यादती के कामों में सिफारिश कर रहे हैं। अगर ना, अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो। उस बंदे को अगर आप इस काबिल समझते ही नहीं कि वो इस जॉब के काबिल है, वो टीचर बन सकता है, या उसके अंदर टीचिंग कैपेबिलिटी है, या वो कोई भी ओहदा संभालने के काबिल है, और आप फिर भी उसको सिफारिश करके उस जगह पर लेकर आ जाएंगे, तो ये आप गुनाह के कामों में ताउन और सिफारिश कर, आने वाली नस्ल खराब, जिसको कहा जा रहा है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, वो नेकी और वो गुनाह के कामों में ताउन मत करो, ज्यादती के कामों में ताउन नहीं करो। तो यहाँ कहा गया मन यशफा शफाअतन हसनतन, जो भलाई की सिफारिश करेगा यानी शफाअत करेगा नेकी के कामों के लिए, यकुल लहु नसीबुम मिन्हा, तो उसको उसमें से नसीब यानी हिस्सा मिलेगा। वमन यशफा शफाअतन सय्यतन, और जो बुराई की सिफारिश करेगा, यकुल लहु किफ्लुम मिन्हा, तो उसको उसमें से भी हिस्सा मिलेगा।
वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुकीता, और अल्लाह हर चीज के ऊपर मुकीत है, निगरान है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह ही राज़िक है। तुम समझते हो कि तुम कादिर हो, कि तुम किसी की मदद करने पर तुम सिफारिश करोगे, तो कादिर वो है, कादिर वो है, तुम वो उसकी जरूरत भी पूरी करेगा, कुदरत भी वही रखता है। तुमने क्या करना है? तुमने सिर्फ उठकर उसकी सिफारिश करनी। निगरान वही है, कदर करने वाला कादिर वही है, कुदरत रखने वाला वही है। और उसके अलावा तुम समझते हो कि तुम किसी को रोजी दिलवा दोगे, अगर तुम सिफारिश करके उसको कहीं जॉब लगवा दोगे, तो राज़िक कौन है? तुम नहीं हो। याद रखना, राज़िक अल्लाह है। अगर वसीला बनना है तुमने से, और जायज कामों के लिए जायज जगह पे, ये याद रखते हुए कि अमानतें अहले अमानत ही के सपोर्ट करनी है, गैर अहलों के सपोर्ट किया तो उसके अंदर भी हमें उसी बुराई में से जो है वो हमारा हिस्सा नहीं तो पड़ जाएगा। और अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया, अगला जो तरीका और रवैया सिखाया जा रहा है माशरती अहकामात के हवाले से, कि वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा, व इज़ा हुय्यितुम, और जब तुम क्या करो, नहीं, जब तोहफा दो, तुम तोहफा दो, बितहिय्यतिन, एक तोहफा, फहय्यु, बस तोहफा दो, बिअहसना मिन्हा, उससे बेहतर, और रुद्दूहा, या लौटा दो उसको। यानी जब तुम किसी को तोहफा दो तो बिल्कुल वैसा ही तोहफा दो जैसा कि तुम्हें तोहफा दिया गया है, या फिर क्या करो, उसी तरह पलटाओ या उससे बेहतर तोहफा। ठीक है ना? अगर कोई तुम्हें तोहफा देता है तो तुमने क्या करना है, या तो तुम उससे बेहतर तोहफा दूसरे को दो, या फिर उतने लेवल का तो जरूर ही दो। ये तोहफा देने की बात की जा रही है। इसमें सलाम लिखा हुआ। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह हर चीज के ऊपर हिसाब रखने वाला है, हिसाब लेने वाला है। तो इस बात को दो मानी में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये कि हो, ये तुम किसको कहते हैं? तोहफा देने को। तोहफा देने का तरीका सिखाया जा रहा है मुआशरे के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहाब्बू व तहाद्दू, तोहफा दिया करो और मोहब्बतें बढ़ाया करो। बाजी तो एक दफा बताएं, तहाबू व तहाद्दू। एक और जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तोहफा दिया करो, क्योंकि तोहफा देने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है और कीना जाता रहता है। तो तोहफे देने का अंदाज और तरीका मोमिन को सिखाया जा रहा है कि जब कोई तुम्हें तोहफा दे तो तुम कैसे तोहफा देना, उसके तोहफे से बेहतर तोहफा देना। क्योंकि हदीस भी हमें बताती है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता, कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करो जो तुम अपने लिए करते हो। आज हमारा हाल ये होता है, जो चीज हमें खुद पसंद नहीं होती वो उठा के तोहफे में दे देते हैं। हाँ, यहाँ पे कैसा तोहफा देने को दिया कहा जा रहा है, उससे बेहतर दो, या कम से कम उतना दो। आप यकीन मानिए, सहाबा कराम का हाल ये था कि उनके अंदर ना, ये माशरे में उनके एक ट्रेंड है या रस्म है, आज तक चली आ रही है, कि वो जब बकरा या बकरी ज़िबा करते हैं तो उसकी जो सिरी होती है उसको वो इज्जत का मकाम समझते हैं। इज्जत तो वो समझते हैं कि अगर हम ये सिरी किसी को भेजेंगे ना तो दैट मीन्स हम उस शख्स को बहुत इज्जत दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, आज भी ऐसा ही होता है कि जब बकरा ईद पर वो कुर्बानी करते हैं तो जिसको वो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ समझते हैं या करीब तरीन अपने से, कि उसको सबसे ज्यादा इज्जत, उसके घर में वो सिरी भेजते हैं। हम रान भेजते हैं, वो सिरी भेजते हैं। ये उनका एक वो है, रिवायत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाक़या आता है कि मदीना के घर में एक बकरी ज़िबा हुई
और एक घर से सिरी दूसरे घर में भेजी गई और वो सिरी मदीना के हर घर से घूमती 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 उसी घर में वापस आ आगे आगे तोहफा देते हैं। दो बातें समझ में आ रही हैं। एक तो ये हर कोई अपने से ज्यादा बढ़ के दूसरे को वैल्यू कर रहा था, जैसे जंग में पानी इसार कुर्बानी। उसको दो और दूसरी चीज क्या समझ में आ रही है कि अगर कोई आपको कोई तोहफा देता है तो उस तोहफे को आगे भी भेजा जा सकता है, उस तोहफे को आगे दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आई तो फिर ना आप आगे भेजें। वो आपको पसंद आई है तो आगे जा रही है। हमारे पास जो चीज आती है हमें पसंद नहीं आती, हम आगे दे देते हैं। सही है। यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन चीज आगे दी जा रही है। लेकिन जब हम तोहफा देते हैं किसी को और अगले को पसंद नहीं आता तो हमें वो गिफ्ट तो वापस नहीं मिलता, लेकिन ये जरूर मिल जाता है कि अच्छा नहीं था, लेकिन हमने तो अपने दिल से किया था ना कि ये अच्छा है हमारे लिए। तो अपनी तरफ से तो आपने अच्छा ही करना हमारी तो नियत ही है, देखी आपने तो अल्लाह ने तो वही देखना है ना। आपका अजर आपकी नियत पर आपको मिल जाएगा। अब किसी को वो पसंद आए या नहीं आए, लेकिन आपने वो चीज देनी है जो आपको पसंद है, आपने वो चीज देनी है जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, आप खुद वो चीज इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये अपने दिल से सब टटोल के देखें। जब आप वो चीज खुद पसंद करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करना, अपने लिए रखना, तो दूसरे को डेफिनेटली पसंद आएगी। नहीं तो दूसरा ये कहेगा उसकी चॉइस ही ऐसी है, वो पहनती ऐसी है, वो इस्तेमाल ही ऐसा करती है, वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। कोई बात नहीं, समझ आई? ये बात किसी को कहने का मौका ना मिले, खुद तो देखो कितना अच्छा करती है तो हमें क्या दिया। समझ गई ना? तो ये बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तरीका बताया। और सबसे बेहतरीन तोहफा कौन सा होता है जो एक मोमिन किसी मोमिन को देता है? सलाम। वो होता है दुआ का तोहफा। क्योंकि हदीस से पता चलता है कि जितनी देर एक मोमिन अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करता रहता है, फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहता रहता है। और जब क्योंकि वो भाई के लिए जो दुआ करता है, वो दुआ उस भाई के हक में फौरन कबूल होती है, क्योंकि वो फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कह रहा होता है। चाहे सच्चे दिल से हो जाए ना हो। एक बंदा जब अपने मोमिन भाई के लिए दुआ कर रहा है तो सच्चे दिल से ही कर रहा है, नहीं तो दूसरे के मुंह से तो कभी दूसरे के लिए दुआ निकलती भी नहीं है। मैंने आपको बताया भी था, यस, निकलती ही नहीं है। आप दुआ देते हो तो रिटर्न में भी नहीं निकलती। बात वक्त तो बंदा इसलिए भी कह रहा होता है कि मेरी कबूल हो जाए। हाँ, बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, ये तो ठीक है, इसमें कोई गुमान नहीं है। अपने हक में भी तो वो कबूल हो। हाँ जी, क्योंकि जब आप वो दुआ पर आमीन कहते हैं तो हदीस बताती है कि जब वो मोमिन आमीन कहता है तो फरिश्ता कहता है आमीन, ये सब तेरे लिए भी हो। तो वो चीज है जो आपने अपने मोमिन भाई के लिए मांगी है, खुलूसे दिल से ही मांगी है तो मांगेंगे। ऐसे किसी के लिए दुआ भी नहीं निकलती। मैंने आपको बताया था ना, हज करके उम्रा करके आ जाते हैं और हमसे कहते हैं आप हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी बख्शिश हमारी कर दे। तो आगे से लोग क्या कहते हैं? हाँ जी 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 जी। हालांकि आपको फौरन दुआ दे देनी चाहिए कि बस वही बात वही है, दुआ वही देता है जो असल में दिल से निकलती है। ऊपर से किसी के मुंह से कभी भी कोई दुआ भी नहीं निकलती, ये याद रखिए। अच्छा, लेकिन एक बात जो इन्होंने दुआ वाले बने, दुआएं देने वाले बने, आप बनेंगे दुआएं देने वाले। ये आपका इखलास है। जितने मुखलिस होंगे उतनी दुआएं आपके मुंह से फूट फूट के निकलेंगी, और जितनी उसी वक्त निकलेंगी। आपने किसी को देखा होगा, वो बैठे बैठे उनके मुंह से दुआएं निकल रही होती, कितनी उनकी पर्सनालिटी में एक वकार होता है, एक तमानियत होती है, एक स्पिरिचुअलिटी होती है, एक रूहानियत उनके अंदर नजर आती है कि नहीं आती? उसी के लिए उसी के अंदर नजर आती है जिसके अंदर इखलास होता है, वही मुंह से निकल रहा होता है। नहीं तो किसी के मुंह से दूसरे के लिए दुआएं निकलनी इतनी आसान नहीं होती। तो जब मोमिन भाई के लिए जब करें तो सबसे बेहतरीन तोहफा यह है जो दुआ का तोहफा है। और जो मोमिन अपने मोमिन भाई के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा दुआ का तोहफा देता है, वो कौन सा है? जो शरीयत हमें सिखाती है, वो है सलामती का तोहफा। क्योंकि मुस्लिमों
मन सल्लिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। और वल मोमिनु, मोमिन कौन है? मन आमन नास, जिससे पूरी की पूरी इंसानियत अमन में आ जाए, ये है मोमिन और मुस्लिम। तो उससे तो ना जबान से किसी को तकलीफ पहुंच रही है, ना हाथ से किसी को तकलीफ पहुंच रही है, और पूरे के पूरे लोग तकलीफ भी नहीं पहुंचा रहा बल्कि अमन दे रहा है, सबको अमन में रख दिया उसने। ये है मोमिन। अल्लाह में ऐसा मोमिन बनाए, अल्लाह हमारी औलादों को भी ऐसा ही मोमिन बनाए। तो जो इस्लाम है वो क्या है? अमन और सलामती का दीन है। वो दूसरे को अपने से सलामती में देने की दुआ है जो मोमिन दे रहा होता है, अस्सलाम वालेकुम कहकर कि सलामती हो तुम पर। तो वो अपने से हर शर से उसको महफूज कर रहा होता है। ये सलाम कब सिखाया गया? शुरू से, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई, ये तब से चल रहा है, क्योंकि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, सलामती का दीन है। और ये दीन एक दूसरे पर सलामती भेजता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, इज़हब, जा, वसल्लिम, और सलाम कर, सलामती भेज। किसके पास भेजा था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों के पास भेजा था, और जाके कहा था सलामती, सलामती भेजो। और उन्होंने जाके बोला था अस्सलामु अलैकुम, और सारे लोगों ने क्या बोला था? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जो अत्तहियात में पढ़ते हैं ना वो कालमा, वो फरिश्तों ने की था ना, सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो जब तमाम अरवाह को तख्लीक कर दिया गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने 1 to 1 हम कलामी सब ने की थी फरिश्तों ने, तो वो क्या किया था? यही अत्तहियात का मुकालमा वहाँ पर हुआ था कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, तो ये भी उसी वक्त सलाम करने का अंदाज और तरीका था जो किया गया था। इसके बाद हम कुरान में देखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए तो भी उन्होंने क्या कहा था? सलामुन अलैकुम। उन्होंने उनके ऊपर सलामती भेजी थी, यही तरीका था सलाम करने का। उसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए मेराज पर नहीं, उस पे हाँ जी, वो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये तब किया गया था उनसे। अच्छा, उसके बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद मैं आपको बता रही थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस किए गए तो फिर क्या हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस किए गए तो उनको देखने के लिए मुख्तलिफ लोग इधर उधर से आते थे। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खोज में आए कि देखूं तो सही ये कौन है जो जिसने नबूवत का दावा किया है, मैं भी तो सुनूं कि क्या वो कहता है और किस तरह की बात करता है। तो 3 दिन जब वो छुपे रहे और वो हज़रत अली उनको जो है वो उन्होंने 1 कदम बढ़ाया, अल्लाह ताला की तरफ से 10 कदम बढ़े। हज़रत अली उनको अपने साथ ले गए कि आप खैरियत है। 3 दिन अपने घर अपनी रात ठहराते रहे, सारा दिन आके वो खाने काबा के गिलाफ के पर्दे के पीछे बैठ जाते थे। रात होती तो फिर हज़रत अली अपने घर ले आते। फिर एक चौथे दिन उन्होंने पूछा खैरियत है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने सुना है। उन्होंने जब देखा ना कि हज़रत अली को कि कोई भी इसके अंदर कोई शर का उनसा मुझे नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने उनसे बात करने मुनासिब समझा और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ पे किसी ने नबूवत का दावा कर दिया है, मैं उस नबी को देखने के लिए आया हूँ। क्योंकि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के भाई ने आके अपने हजूर के बारे में बताई थी बातें जिस पर उनको तसल्ली नहीं होती और वो सेटिस्फेक्शन के लिए खुद आए थे। तो जब वो गए हैं ना, उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, आप मेरे साथ पीछे पीछे चलें, अगर कोई खतरा भापूंगा तो मैं आगे निकल जाऊंगा और मैं जूता ठीक करने लगूंगा, आप आगे निकल जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई खतरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों खामोश दावत दीन दे रहे थे दारे अरकम में। तो किसी को पता नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दारे अरकम में इस तरह खामोश दावत दीन दे रहे हैं।
یہ جیسے ہی اندر جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتے ہی آگے سے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ طریقہ ان کا سلام کرنے کا میرے اور آپ کے سب کے لیے سلام کا انداز بنا دیا گیا. یہ جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہمارے لیے سلام کا انداز اور طریقہ بتا دیا گیا. اب جب جنتی بندے کی روح قبض کی جائے گی تو فرشتے بھی آئیں گے، قرآن میں آتا ہے، اور وہ آگے کیا کہیں گے؟ نیک روح کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آئیں گے تو وہ آگے کہیں گے سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم پر سلامتی ہو، جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے داخل ہو جاؤ جو تم کرتے رہتے ہو. تو وہ اسی وقت جنت میں داخلے کی خوشخبری دے دیں گے، اور وہ جنت کی ایک شاخ دکھائی جائے گی جس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا اور اسی وقت اس کی روح نکال دی جائے گی، بالکل ایسے جیسے مشک کا ڈھکن کھولے اور اس میں سے کھٹ کر کے پانی گر جاتا ہے، ایسے اس کی روح نکلے گی، کیونکہ وہ جنت کی شاخ کی دکھائی جائے گی اور وہ شاخ کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، اسی وقت اس کی روح قبض کر لی جائے گی. سبحان اللہ، یہ معاملہ ہوگا کیونکہ اس کو سلامتی کی دعا فرشتوں سے مل جائے گی. اس کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے رب، میرا رب مجھ سے راضی ہے، مجھے سلامتی کی دعائیں دی جا رہی ہیں. اسی طرح جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت کا داروغہ، وہ جو رضوان ہے، وہ کیا کہے گا؟ سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، بڑے اچھے رہے ہو. فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی طرح سے جب جنتیوں کا استقبال کیا جائے گا تو ہر طرف سے فرشتے آئیں گے اور ان کو وی آئی پی پروٹوکال دیں گے اور پھر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے صبر کی وجہ سے تمہیں سلامتی ہو. فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا گھر ہے تمہارا یہاں پر. وہ گھر کو دیکھ کر، جنت کے محل کو دیکھ کر، وہاں پر فرشتے استقبال کے لیے وی آئی پی پروٹوکال دینے آئیں گے اور ایسے اس جنتی کا استقبال کریں گے اور کہیں گے تمہارے صبر کی وجہ سے تمہیں یہ گھر ملا ہے، لہٰذا کتنا خوبصورت ہے یہ گھر، اس میں داخل ہو جاؤ. اور پھر جب تمام نعمتیں مل جائیں گی تو سارے کے سارے جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سلام بھیجے، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلامتی بھیجی جائے گی. ہر طرح کی سکون، امن، سلامتی اللہ کی طرف بھیجی جائے گی. اور یہ جنتی یہ دنیا میں ایک دوسرے کو سلامتی کے تحفے دیا کرتے تھے، اپنے سے امن اور سلامتی میں دوسرے کو رکھتے تھے، اپنی نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیتے تھے، نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچاتے تھے، سلامتی کے تحفے دیتے تھے. صرف زبان سے نہیں ان کے سلام کر رہے ہوتے تھے بلکہ اصل میں وہ سلامتی دے رہے ہوتے تھے. تو وہاں پر بھی ان کا یہی حال ہوگا. جنتیوں کا کیا ہوگا؟ آتا ہے قرآن پاک میں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہ وہاں پہ کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلامتی سلامتی سلامتی. ہر کوئی ایک دوسرے کو مل کے کیا کر رہا ہوگا؟ سلامتی کے تحفے دے رہا. تو سلام کو اپنا شعار بنائیں، اپنی عادت بنائیں، زیادہ سے زیادہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، ہر جگہ سلام کریں. حتیٰ کہ دو لوگ بھی آپس میں ایسے ہوں کہ درمیان میں کوئی آڑ رکاوٹ دراڑ دیوار آ جائے اور پھر آمنا سامنا ہو، پھر سلام کرو. گھر میں داخل ہوتے ہوئے استئذان کے وقت سلام کرنے کا حکم، سلام خالی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہو، اس سے گھر میں گھر والوں پر برکت آتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے. خالی گھر بھی ہوگا تو پھر بھی سلام کر کے داخل ہونا چاہیے. خود بھی عادت ڈالیں، بچوں کو بھی عادی بنائیں، سلام کرنے کے لیے آگے بڑھ کر خود سے آگے انیشیٹو لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے، تکبر سے عاری ہے. یہ ایروگنس کی علامت ہے کہ آپ سلام نہیں کر رہے. آج بیٹھے ہوتے ہیں منہ چڑھا کے کہ ماسی آئے گی، میڈ آئے گی تو وہ مجھے سلام کرے، میں کیوں سلام کروں.
خود آگے بڑھ کر سلام کریں. یہ جنتیوں کی صفت ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے. یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, سلام کو رواج دو, اور صلہ رحمی کرو, اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. 4 اعمال بتائے گئے جنت میں داخلے کے. کھانا کھلانا, صلہ رحمی کرنا, سلام کو رواج دینا یعنی زیادہ سلام کرنا, اور پھر کیا ہے رات تہجد کی نماز کو پڑھنا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان لانے والے نہ ہو جاؤ, مومن نہ ہو جاؤ. اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہمی محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. اور میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دوں؟ سلام کو پھیلاؤ. باہمی محبت کا نسخہ کیا ہے؟ سلام کو پھیلاؤ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں میں آپس میں ہمیشہ محبت قائم رہے, سلام کو پھیلائیں, ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کریں. بچوں کو عادی بنائیں کہ جب ملے سلام کریں, جب ملے سلام کریں. کزنز, ریلیٹیوز, جس کے ساتھ بھی ملے سلام کریں. یہ محبت کا نسخہ ہے جو نبی نے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا سلام کرو چاہے جانو یا نہ جانو. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب عورتیں غیر محرموں کو سلام کریں گی. ویسے بھی ضرور ہیلو کہہ دیتے. ہاں جی. چاہے ہمیں جان. تو آپ دیکھیں وہ کتنے لونگ ہوتے ہیں, وہ کتنے لونگ ہیں, بے غرض ہو کے پیار کرتے ہیں, آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن عورتیں عورتوں کو سلام کریں گی, غیر مردوں کو سلام نہیں کریں گی. اگر کوئی کرتا ہے آپ کو تو اشارے سے تو جواب دے دیں آپ, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو اب جواب بھی نہیں دے رہے, لیکن آپ اشارے سے ان کو جواب اس طرح کے کر کے دے دیا آپ نے. لیٹس سپوز آپ کا کوئی ملازم ہے, آپ کا ڈرائیور ہے, وہ سلام کرتا ہے تو آپ اشارے سے ان کو کر دیں, جواب دے دیں. جیسے مالی وغیرہ, مالی آپ کو کرتا ہے. ضعیف ہوتے ہیں ان کو کون ضعیف ہے؟ نہیں جی, چاہے وہ ضعیف ہے, مرد ہے, غیر محرم ہے, نہیں کرنا. صحیح, ان کو جواب بھی نہیں, ان کو آپ نے سلام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. لیکن عورتیں عورتوں کو سلام کریں گی. آج کیا ہے, بلکہ حج میں آتا ہے کہ حج کیا ہے, زیادہ سے زیادہ سلام کرنا اور زیادہ سے زیادہ قربانی دینا. زیادہ سے زیادہ سلام کرنا اور زیادہ سے زیادہ قربانی دینا, یہ حج ہے. اور حج میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جب 2 لوگ آپس میں پاکستانی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور آپ کو سلام کرتا ہے تو ایسے دیکھتے ہیں آپ کو کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں مجھے دیکھ رہی ہے, یہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے, میں وہ نہیں ہوں جو یہ سمجھ رہی ہے. کوئی آگے سے آپ کو جواب بھی نہیں دیتا. خواتین ہی کے اندر ایسے ہے. جیسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ڈرائیور آ کے بیٹھتا ہے جی, وہ سلام کرتا ہاں ہے, جی, تو منہ تو ادھر ہوتا ہے, ہاں جی, پھر کیا کریں؟ تو وعلیکم السلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام کہتے ہیں. اس نے تو اتنی اچھی دعا دے دی آپ کو, تو آپ دعا نہیں, مطلب اس کا اشارہ دوسرا وہ تو آپ دیکھا کا جانے جاننے والا ہے نا, مطلب ایوری ڈے ہاں آپ جی, اس کے ساتھ جا تو رہے کوئی ہیں. حرج نہیں ہے. آپ کے انداز میں لچک, ہاں, نرمی, پیار نہیں ہو, لوچ نہیں ہو, ٹھیک ہے, بس آرام سے آپ. ویسے تو کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں اتنی سخت نہیں ہوں اس بارے میں. آپ کے انداز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے اور آپ طریقے سے اگر آپ جواب دے دیں, لیکن ہاں, لیکن جو ہے اوائڈ ہی کرنا چاہیے. خود سے آپ نہیں آگے بڑھے, لیکن عورتوں کو خود سے آگے بڑھ کے کریں, ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک اور یہ کہ مسلمان پر 5 حق ہیں. آپ کی سوال کا جواب بھی اس میں ہے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں مسلمان کے, کہ ملاقات کے وقت جب وہ سلام کرے تو اس کو جواب دیا جائے. ایک حق اس میں سے یہ بھی ہے, جب اسے چھینک آئے تو اس کے لیے یرحمک اللہ یعنی جواب دیا جائے. اگر مریض ہو تو اس کی عیادت کو جایا جائے, اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے, اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے. یہ 5 حق ہیں مسلمان کے اوپر, جس میں سلام کا جواب دینا بھی جو ہے وہ لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ناراض ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیا کرتے تھے, سلام کا جواب دل میں دے دیتے ہوں گے لیکن اپنی ناراضگی کا اظہار منہ پھیر کے ہی کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا.
تو یہ نظریں پھیر کر اور سلام کا جواب دل سے دے دیا کرتے ہوں گے، لیکن دوسرے کو ایک اظہار بھی کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے سوری فیملی والے پرانے زمانے میں جب ہم بچے تھے تو بڑی بولیاں ہاں جی ایسے وہ کر لیتے تھے. ہاں جی تو ہم بڑا برا مناتے تھے. ہاں جی. اچھا جی، اب یہ ہے کہ یہ بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے یہ بھی سن دیکھ لیجئے کہ کچھ طریقے اور کچھ آداب جو ہیں وہ سلام کے سکھائے گئے ہیں. اور اس میں کیا چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ سمجھ لیجئے کہ سلام نا ہمارے دین کا شعار ہے، اس سے ہم اسلام کو پہچانا جاتا ہے. جب بھی کوئی سلام کرتا ہے نان اسلامک کنٹری کے اندر تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان. صرف اور صرف چاہے وہ انگریز ہی لگ رہا ہو، چاہے وہ بالکل برٹشر لگ رہا ہو، چاہے وہ بالکل ہی جرمن لگ رہا ہو، جب وہ آپ کو سلام کرے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون ہے، مسلمان. اور عورت کو آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ اس کے حجاب سے. اس نے کور کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اگر وہ سلام کرے گا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مسلم ہے. ایسے ہی ہے نا؟ یہودی عورتیں بھی حجاب پہنتی ہیں، وہ اس طرح نہیں پہنتی جس طرح ہم پہنتے ہیں. وہ وگز پہن کے اپنے بال چھپاتی ہیں بس. ہاں جی، وہ ایسے کرتی ہیں. نہیں نہیں، ان کے پہلے ہوا کرتا تھا وہ لوگ منہ بھی کور کرتی تھی، اب وہ نیٹ لگاتی ہیں ان میں سے کچھ جو بہت ہی زیادہ ایروگینٹ قسم کی اور بہت ہی وہ ہے. اب تو یہ بھی ان کے اندر سے ختم ہو گیا. صرف اتنا رہ گیا کہ وہ اپنے بالوں کو دکھاتی نہیں ہیں، اس کے اوپر وگ پہن لیتی ہیں، لیکن اندر کے بال ان کے چھپے ہوتے ہیں اور باہر کی وگ پوری کھلی ہوتی ہے، وہ کور نہیں ہوتا. وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہے کیوں آپ کو انسان کے بال تو ود دا پیسج آف ٹائم اور ایج وہ جھڑ بھی جاتے ہیں، کم بھی ہو جاتے ہیں، کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، تو وہ زیادہ حسین اپنے آپ کو بناتے ہیں تاکہ وہ اوپر سے بھی ہاں جی پہن لیں. صرف شیپ کی وجہ سے نہیں، ویسے بھی ان کی خواتین پہنتی ہیں. اچھا جناب، اب اس میں یہ ہے کہ جو سلام ہے اس کا پورا ایک چارٹر ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ایک تو یہ کہ قرآن جو یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے، یعنی سلامتی کا تحفہ دیتا ہے، تو تم کیا کرو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر تحفہ اس کو دو. اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے، اس سے بہتر سلامتی کا تحفہ دیں گے. تو وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 ہے. دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا اس کے لیے 20. اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا اس کے لیے 30. پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ 20 10 20 30 کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف کہا السلام علیکم اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. تو اگر کوئی آپ کو سلام کہتے ہیں السلام علیکم، تو بِأَحْسَنَ مِنْهَا کا کیا معاملہ کیسے کرنا ہے آپ نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا پھر جس کے لیے 30 کہا گیا تو اس کے لیے اور بہتر معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو آگے کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ آگے سے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ 30 نیکیاں آپ نے حاصل بھی کر لی اور آپ نے اس کو بہتر رحمتیں بھی بھیج دی اور برکتیں بھی بھیج دی اللہ کی. تو یہ آسان منہا، اس سے بہتر چیز، او یا ردوہا، یا تم اتنا تو کم سے کم لوٹا دو، کم سے کم یہ تو کہہ دو کہ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا واسام ہے نا. تو سلام کے لیے بھی اگر آپ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ السلام علیکم، بلکہ آپ نے کہہ دیا السلام علیکم یا والسلام، تو واپسی پر بولتے ہیں نا، اور سلامتی ہو، یعنی کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وعلیکم السلام کہنا ہے، آپ پر بھی سلامتی ہو. والسلام تو جاتے وقت کہتا ہے انسان کہ اچھا جی سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جاتے وقت رخصت ہوتے وقت کہا جاتا ہے. سلام کا اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں، تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بڑھ کے کر لیجئے. اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو آپ خود بڑھ کے آگے کر کے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر وہ بندہ واک کے لیے نکلتا ہے نا، تو
जाने हैं हमारे तो आपको हाँ जी, जब वॉक के लिए स्पेशली जाते हैं तो कुछ लोग नहीं करना चाहते, आप उनको सलाम करें। लेकिन याद रखिए ये जब आप सलाम करते हैं ना तो इसकी रूह बरकरार रहनी चाहिए, हैंड फ्री लगा इसकी रूह बरकरार रहनी चाहिए। आपके सवाल का एक और जवाब है, ये क्यों लोग अवॉइड करते हैं? इसलिए अवॉइड भी करते हैं कि रूह नहीं होती हमारी सलाम के अंदर। उधर तो हम सलाम करते हैं और उधर थोड़ा सा दूर होते हैं तो उसी की बुराइयां करना शुरू हो जाते हैं। इधर हम कह रहे थे तो मेरी तरफ से तुम अमन और सलामती में हो, उधर साइड पर हुए तो उसी की बुराइयां जो है वो ग़ीबत के तौर पर शुरू कर दी। तो सलाम जब करें तो पूरी रूह के साथ करें, उसकी रूह अंदर होनी चाहिए कि मेरे से तुम अमन और सलामती में हो। हम जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर, सलाम करते हैं, ईदों पे गले मिलते हैं और वापस आके और उनकी खूब ग़ीबतें करते हैं। तो वो भी तो उन्होंने नहीं कर रही वो भी तो आप देख लीजिए हमारा तो हाल हमारा बुरा हाल हो जाता है। यस, ये सब हाल ये है हमारा, रूह बरकरार नहीं है। चार लोग मिलते हैं और फिर लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं कि ये मेरी फिर बुराइयां करेगी। इधर तो मुंह पे बहुत अच्छी मिलती है और सारा वक्त बोलती है, सलाम सलाम करती है, अब पीठ पीछे जाके मेरे से फलाने के लिए मुझे ये कह रही थी। तो सलाम की रूह बरकरार रखते हुए सलाम करना है। ठीक हो गया ना? ये ना हो कि बस फिर सलाम की रूह है नहीं और हम नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम वाला मामला कर लें। अच्छा, दूसरा ये कि कई दफा जो हमारे ये जो आज सलाम का जो असल रिवाज है ये दीनदार घरों से भी हम देखते हैं कि खत्म होता चला जा रहा है। और वो हेलो हाय जो है ना, ये चीजें आ गई बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा। अगर बच्चों के अंदर आती भी है तो टोकते रहे, वो खुद बहुत सीधे होते जाए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े खूबसूरत अंदाज और तरीके थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना डांटते नहीं थे कभी भी। हजरत अनस बताते हैं कि जब भी बचपन में छोटी सी उम्र में तो आगे थे, 9 साल की उम्र से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, तो वो कहते हैं कि जब भी मैं घर में बगैर सलाम के दाखिल होता था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर ले जाते और कहते अब सलाम करो, और फिर मैं सलाम करता और फिर वो कहते अंदर आओ। ये तरबियत थी। वो घर से बाहर ले जाते थे कि चलो अब अंदर आओ, सलाम करो पहले और फिर अंदर आओ। ये तरीका था उनका। तो क्या होगा, बच्चों को सिखाने के लिए पहले बड़े सलाम करेंगे। आज जब हमने अपने बच्चों को सिखाना है तो हमें खुद सलाम करना है। अब बच्चे खुद ब खुद तो सीखे सिखाए नहीं आते, नहीं तब सीख लेते हैं जब आप बड़े कर रहे हैं। बड़े कर रहे होते तो बच्चे सीख लेते हैं। अभी उस दिन मेरी बेटी मुझे कहने लगी, मामा ये आदत तो आपने मेरे अंदर बहुत ही पक्की डाल दी है कि जब भी घर में दाखिल होती हूँ मैं ऊंची आवाज में सलाम करके दाखिल होती हूँ। अच्छा, हाँ, घर पर भी रहमत, घर वालों पर भी रहमत, और जो घर के अंदर मकीन है उनके ऊपर भी रहमत। हर तरह की जो है ना मोहब्बत की रेज निकलती है सलाम की दुआ से। कई लोगों ने ये आदत बनाई होती है, बच्चे आए हैं ना तो बस हाथ मिलाते जाएंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे। वो भी बहुत अच्छी बात होती है, कोई बात नहीं। अब देखिए कुछ लोग होते हैं बच्चों को आदत बनाते हैं, किसी के घर में आए ना तो वो बच्चा हर बंदे से आके कहते हैं चलो सलाम लो सलाम लो। वो बच्चा तो अभी हेजिटेंट है, रिलक्टेंट है, नहीं मुंह से। कई बच्चों की ना शाय भी होते हैं, कुछ बच्चों की ना वो जो होती है स्पीच भी इतनी क्लियर नहीं होती, वो नहीं भी बोल पाते। हर तरह का डिफरेंट अंदाज के बच्चे हैं। तो क्या करना है, आपके पास जब कोई आए तो आप उससे सलाम करें जोर से करके। तो नेक जो दीनदार घरों में बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे ही की जाती है कि वो बच्चों को सिखाया जाता है कि चलो तुम भी अस्सलाम वालेकुम करो, इनको भी अस्सलाम वालेकुम करो। और वो पहले बच्चे को हाथ सिर्फ आगे जाएगा, उसको सलाम कौन करेगा, बड़ा करेगा। और जब कोई किसी के घर में कोई ऐसे लोग आ गए कि बच्चे बैठे हुए हैं तो जो जिनको असल में वाकई में सलाम का एहसास है वो खुद बच्चों से जाके सलाम करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को आदत बढ़ती जाएगी और खुद ब खुद घर में बच्चों को सलाम का अंदाज जो है वो पता चलता जाएगा। तो ये तरीका है, बड़े पहले बच्चों को सलाम करेंगे, लेकिन हमारा दीन ये सिखाता है कि छोटे बड़ों को सलाम करेंगे और उन छोटों को सलाम सिखाए गए बड़े ही पहले। तो आदाब क्या है, छोटा बड़े को सलाम करेगा, बड़ा अपने से बड़े को सलाम करेगा।
महफिल में बैठे हुओं को आने वाला सलाम करेगा, खड़ा हुआ बैठे हुओं को सलाम करेगा, चलने वाला बैठे हुए को सलाम करेगा, सवार जो है वो मुकीम को सलाम करेगा, सवारी पे जो सवार जा रहा है वो खड़े हुए या मुकीम को सलाम करेगा। समझ आ गई ना आपको? तो ये अंदाज और तरीके हैं जो सिखाए गए हैं। बड़ी जमात अगर है तो छोटी जमात आई है तो वो बड़ी जमात को सलाम करेगी, लेकिन जब कुरान की महफिल हो रही होती है तो उसमें सलाम नहीं किया जाता, उसमें खामोशी से आके बैठा जाता है। और अगर एक बंदा एक पूरी महफिल में ऊंची आवाज में सलाम कर देगा तो वो एक दफा का कहना सारों के लिए काफी हो जाएगा। जब वो एंटर हुआ और आके जोर से अस्सलाम वालेकुम कह रहा है तो उसको हर एक के पास जाके सलाम करना, हर एक से मिलकर सलाम करने की जरूरत नहीं है। महफिल में जब वो आया तो एक दफा का ही सलाम सारे लोगों के लिए काफी कर जाएगा। समझ आ गई? लेकिन जब कुरान का लेक्चर चल रहा है उसमें सलाम नहीं किया जाता, उसमें आके चुप करके बैठ जाते हैं। जब क्लास खत्म होती है तो फिर आप बेशक अस्सलाम वालेकुम कर लें और बात कर लें, क्योंकि ये अदब है, कुरान का अदब है। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह से जो है सलाम के अल्फाज जैसे मैंने आपको बताया ना, तो उसमें कई दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि सलाम के पूरे अल्फाज ही बोल के सलाम किया जाए, हाथ के इशारे से भी सलाम किया जा सकता है, ऐसे करके। आदाब, जैसे लोग आदाब करते हैं, कोई दूर है, कोई बैठा हुआ है ऐसे ऐसे कर रहा है, वो भी क्या है? सलाम है। समझ आ गई? मतलब रिस्पॉन्स। यस, यानी कि आपने जी, ये एक तो अंदाज इशारे से हो गया। दूसरा ये कि अगर आपको कोई सलाम करता है और बताता है कि जी फलां ने आपको सलाम भेजा है, तो सलाम को भिजवाया भी जा सकता है, और जिसको भिजवाया गया है वो एक अमानत थी जो आपको पहुंचाई गई है। अगर मैं आपको कहूं कि आप फलां को मिले तो मेरा सलाम दे दीजिएगा, तो ये एक अमानत है जो आपके सुपुर्द की गई है। आप उनसे मिले तो उनको सलाम मेरा पहुंचाए। लेकिन जब मुझ तक वो सलाम पहुंच गया है तो फिर वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू या वालेकुम अस्सलाम कहना लाजिम है, जिसको दिया गया। आपने अगर मुझे किसी का सलाम पहुंचाया कि फलानी मुझे आपको सलाम दे रही थी, तो मैं कहूंगी वालेकुम अस्सलाम, ये लाजिम है कहना। सलाम करना नफल है, जवाब देना फर्ज है। यस, अच्छा, समटाइम्स हम खुद भी कह देते हैं, कोई सलाम देता है ना तो हम कहते हैं अच्छा वालेकुम अस्सलाम, हम आपका सलाम पहुंचा दें। नहीं, नहीं मतलब कि आपको अगर मैं आपको कहूंगी कि आप इनको मेरा सलाम दे दीजिएगा तो आप वालेकुम अस्सलाम क्यों कहेंगी? वो इसलिए कहेंगे कि वो मैं आपको तो सलाम नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ उनको सलाम दे दीजिए। नहीं, वो इसलिए कि वो वालेकुम अस्सलाम उनका पहुंचाना तो वापस मुश्किल है ना, तो वो फिर आपने अभी दे दिया। नहीं, ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है। आप अपना फर्ज पूरा करें, उन तक पहुंचाकर अगर वो कहेंगे उनको भी मेरा सलाम दे दीजिएगा तो फिर आपने पहुंचाना है। यस, ठीक है। हम इस चीज के वैसे लाइट लेते हैं। हम चीज को हम समझते ही कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सलाम की कितनी बड़ी वैल्यू और अहमियत है। फिर ये होता है कि फोन पे कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। आपको जब कोई सलाम कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। क्या सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वालेकुम अस्सलाम। आपको कोई फोन पे तो अक्सर ही गलती सब लोग करते हैं, कोई सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम तो अगला भी आगे से सलाम करता है। ये आपको अगर सलाम किया तो आप बोले उनको वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलाम किया, ठीक है ना? तो आपको कुछ झिझक है इसमें, तो आपको पूरा उस तरह से बोलना चाहिए और तरीके से उनको जवाब दीजिए। इसके अलावा सलाम के हवाले से हाथ मिलाना, मुसाफा करना, ये एक तरीका है जो हमारा दीन हमें सिखाता है। और उसमें क्या होता है कि जब आप सलामती में दे देते हैं तो जितनी देर आप सलाम मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उतनी देर हदीस में आता है कि जितनी देर मोमिन भाई का हाथ मोमिन भाई के हाथ में रहता है, दोनों के गुनाह झड़ते रहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ लेते थे ना कोई सलाम करते हुए, तो छुड़ाते नहीं थे, जब दूसरा ही छुड़ाता था तो छुड़ाता। जब से कोरोना आया तो सुभान अल्लाह। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के घर गए और वहां पर उनको दस्तक दी तो सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है
किसी सहाबी जिनके घर गए थे उनका नाम लेते थे, या अहले बैत कहते थे आप अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत, अस्सलाम वालेकुम या अहलल बैत। 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया अहले बैत को, यानी घर वालों को सलाम भेजा। सहाबी घर में थे, घर वाले भी घर में थे, कोई जवाब नहीं आया। तो हुक्म क्या है दीन का? इस्तिज़ान का हुक्म है कि अगर आपको 3 दफा आप जब ले इजाजत सलाम करके या किसी तरह से भी खटखटा कर, और अगर आपको जवाब न मिले तो आप बगैर बुरा मनाए वापस चले जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मुड़ गए। वो सहाबी दरवाजे की चौखट के पीछे खड़े हुए सुन रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती भेज रहे थे घर वालों पर। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे, क्योंकि हुक्म तो यही है कि 3 दफा से ज्यादा नहीं और करना, तो फौरन पलट के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर पर ही था, आप आए मेरे घर तशरीफ लाए, आप वापस न पलट के जाएं। तो उन्होंने आगे से कहा कि मेरे दिल ने ये गवारा ना किया कि आप मेरे घर वालों पर इतनी प्यारी सलामती की दुआ भेज रहे हैं और मैं जो है वो आपको रोक लूं, इसलिए मैंने कहा आप सलामती की दुआ भेजते रहे और मेरे घर वालों पे वो सलामती की दुआ आती रहे, तो इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला था। फिर वो आप सल्लल्लाहु को अंदर लेकर गए। तो ये भी देखिए, जिनको पता है ना कि इसके अंदर कितनी बरकत पोशीदा, कितनी रहमतें आती हैं, इस सिर्फ एक सलाम की वजह से। ये जो यहूदी हैं, इनको हमारा सलाम ही नहीं पसंद, इनको एक तकबीर नहीं पसंद, अजान की आवाज और सलाम नहीं पसंद, और इनको आमीन जो नमाज में जब सब आमीन मिलकर कहते हैं ना और गूंज आती है, इनको वो भी पसंद नहीं। नॉन मुस्लिम्स को हमारा सलाम, हमारे अल्लाहु अकबर की जो अजान के कलमात, हमारी ये वाइट पगड़ी और ये हमारा जो मैंने भी आपको बताया अजान का आमीन जो कहते हैं, इससे उनका दिल दहलते हैं। इससे हमें पता ही नहीं है, इसका एहसास ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी चीज है जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर बताई। कब्रिस्तान से भी जब गुजरते हैं, हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर, अहले कब्र को जो है वो सलामती भेजी जाती है। और ये कहना कि जी कब्र में जो है वो मुर्दे औरतों को देखते हैं और जिंदा हैं और वो सब ऐसे होते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका सिखाया है, लिहाजा हम इसलिए ये जो है वो सलाम उनको करते हैं, चाहे वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये अल्लाह को मालूम है, इसका इल्म ना हमें दिया गया है ना हमें मालूम है। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा अब अगला काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज से हमें समझ में आता है, वो ये आता है मुआनका करना, यानी सलाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले भी मिला करते थे, गले भी मिला करते थे। तो ये जो गले मिलने का अंदाज और तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सुन्नत से हमें पता चलता है, ये गले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमी तौर पर अपने ब्लड रिलेटिव से ही मिला करते थे, ब्लड रिलेटिव से ही गले मिला करते थे और किसी से गले नहीं मिला करते थे। जो मुआनका करना है ना, जो अरबों में आपने बहुत देखा होगा कि वो सलाम करते हैं, उसके बाद जो है वो गले मिलते हैं, मुंह चूमते हैं और ये वो सब करते हैं। तो वो जो ब्लड रिलेटिव्स है ना, उनके साथ आप गले मिलते हैं, बाकायदा गले मिलना, ये राइट साइड पे मुंह चूमना, और वो भी ये लोग अपने बेसिकली ब्लड रिलेटिव्स के साथ करना जो है उसमें कंफर्टेबल होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज नजर आता है वो मुआनका करना अपने ही ब्लड रिलेटिव्स के साथ था, बाकी सहाबा कराम के साथ ये काम नहीं था। और इसी चीज को लेके ना जो कहते हैं ना सीना बसीना इल्म ट्रांसफर होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा और इल्म ट्रांसफर हुआ, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब इक़रा की वही ट्रांसफर की थी तो क़ल्बे नज़लहु रूहुल अमीन अला क़ल्बिक के अल्लाह ताला ने इसको
روح الامین کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک پہ نازل کیا. تو جو پہلی وحی آئی تھی تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. تو وہ علم ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اسی چیز کو لے کر بھی کہتے ہیں کہ جی سینہ بسینہ علم ٹرانسفر ہوتا ہے. تو وہ جو گدی نشینوں کا کانسیپٹ ہے وہ اسی چیز سے نکالا گیا ہے. اسی لیے بھی آپ کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ نظر آتا ہے وہ صرف بلڈ ریلیٹیوز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلے ملا کرتے تھے, باقی کسی کو نہیں ملا کرتے. واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے, لیکن بہرحال نبی کا طریقہ یہ ضرور نظر آتا ہے کہ معانقہ صرف اور صرف بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ. اور آپ دیکھیں بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ یہ چیز اس لیے بھی سکھائی گئی ہے کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان کسی قسم کی منافقت نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے جو لوگ بہت پیار جن کے ہوتا ہے نا ریلیٹیوز کے اندر, وہ لوگ تو خوب گلے بھی ملتے ہیں, چوم بھی لیتے ہیں, گٹ کی جپی ڈالتے ہیں. لیکن جدھر تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے یا کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے وہاں تو بس ہلکا سا ہاتھ بس لگا لیا, وہ بھی کر لیا, دودھ ہاں 3 انگلیاں. اور کہتے ہیں کہ کسی کا اخلاص یا محبت دیکھنی ہے تو اس کے ہاتھ کے ملانے کے انداز سے دیکھا جائے کہ وہ دل کا کتنا مخلص ہے اور محبت کرنے والا ہے. جو صحیح طرح ملتا ہے اس کا مزہ آتا ہے. جی. اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھو گا, ابھی آپ یہ نوٹ کیجیے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں نا تو وہ صرف اور صرف آپ کی انگلیوں سے انگلیاں ہاتھ ہلکا سا ملائیں گے, بس اتنا ہی رکھیں. اور کچھ لوگ ہوں گے وہ بالکل آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ملیں گے, اور کچھ لوگ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ بالکل جپی ڈال کے ملیں گے. وہی آپ کو ان کے اندر یہ کلاس پتہ چل جائے. تو محبت, ہاتھ ملانے میں بھی کنجوسی, تو آگے چیزوں میں کتنی کنجوسی ہوگی. پھر وہ محبت کا انداز ہے نا, تو جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ معانقہ کریں, ان کے ساتھ محبت دکھائیں, ان کو ضرورت ہے آپ ان کو بتائیں. یہ بڑا خوبصورت انداز اور طریقہ ہے جو سکھایا گیا ہے. میرے اور آپ کے لیے تو ہم ہاتھ پہ ملا لیں گے کافی ہوگا, لیکن جدھر ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تو بنا کے رکھنا ہے نا. ان کے ساتھ تو یہ ہے کہ آپ سے پوچھ ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جواب دینا پڑے گا. دوسرا دل بھی نرم ہوتا ہے جب آپ لگا کے ایسے اور انہی سے کرتے ہیں آپ, تو آپ کے دل سے نفاق نکلتا ہے جب آپ بھی ڈالتے ہیں دوسرے کو. اچھا بہنیں جو ہیں بہنیں بھائیوں سے جب آپ مل سکتی نہیں, بہنیں بھائیوں سے نہیں مل سکتی, بہنیں باپوں سے نہیں گلے مل سکتی, مرد سے نہیں کرے گی, عورت عورت سے کرے گی, مرد مرد سے کرے گا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, بیٹوں کے ساتھ بھی ایک ادب کے ساتھ دائرے. سائڈ تو ٹھیک ہے, سینے سے نہیں چپٹایا جائے, بہت زیادہ کلوز, سینے سے نہیں چپٹایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نظر آتا ہے نا, اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہ ان کی عزت کیا کرتے تھے, ان کے ہاتھ چومتے تھے یا ان کا ماتھا چومتے تھے, ان کو اپنی جگہ پر اپنی پاس بٹھاتے تھے, چادر بٹھاتے تھے اپنی جگہ پر اور وہاں پہ بٹھاتے تھے, لیکن ان کو کبھی سینے سے نہیں چمٹایا تھا. تو سلام کرنے میں یہ مائیں بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ دھیان رکھیں گی. اور خاص طور سے استئذان کا جب حکم آیا تو صحابی نے کہا کہ مجھے تو اپنی ماں کو ہر وقت ان کی خدمت کے لیے جانا پڑتا ہے اور ان کو پاس بار بار ان کو موجود ہونا پڑتا ہے, تو کہ میں جب بھی جاؤں تبھی میں سلام کروں, ہر دفعہ ان کے پاس جانے اجازت لے کے جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھے جس میں دیکھنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے؟ تو ماں بھی تو آپ کی ایک عورت ہے نا, تو آپ اپنی ماں کو بھی اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے کہ جس میں دیکھنا مناسب نہیں ہے. یہ گندگی, یہ پورنوگرافی, یہ سب اسی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے. ان چیزوں, یہ ہماری معاشرے کی, ہمارے دین کی, بلکہ میں کہنا چاہیے کہ یہ دین کی تعلیمات ہیں, یہ ہمیں خود بھی اس پہ فالو کرنا ہے اور آگے بھی ان کو ٹرانسفر کرنا ہے. آج ویسٹ کو دیکھا دیکھی ہم نے اپنی یہ اصل اقدار ہی چھوڑ دی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا, اتنا بھی ہمارا دین سخت نہیں ہے ہمارا دین سخت. یہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم بڑے پوتے ہیں, آپ ان کو پیار کریں,
आप उनका माथा चूमे, साइड पे से आप उनको आगे करें, उनको सलाम लें, उनको सर नीचे कराएं, कहें आओ मैं तुम्हारे सर पे प्यार दूं। अगर वो जब भी लाए नहीं, जब भी डाले उनको कहने आओ मैं तुम्हें सर पे प्यार डालूं। साइड से आपको जरूर वो प्यार करें, साइड से, बट नॉट सामने, सामने से नहीं, साइड से वो आपको करते हैं। पोते हैं आप, माशाल्लाह दादी हैं आपके, पोते वगैरह हैं, प्यार मोहब्बत सारी तरीका, अदब, पता चलेगा लिहाज, और ये हमने सिखाना, ये हमने सिखाना है। आपको पता, हाँ जी ये हदूद है। आप देखिए ये भी टांगे खोलकर बैठना भी पसंदीदा नहीं है, ये अदब के खिलाफ है। पेरेंट्स के सामने टांगे जोड़ कर बैठे, फादर आ जाए मदर आ जाए, खड़े हो अदब से, झुकना नहीं है, खड़े होना है, अदब है ना। तो ये तरीका है, उनसे पहले नहीं बैठना, उनसे आगे नहीं चलना, उनका नाम लेके नहीं पुकारना। ये हजरत अबू हुरैरा ने तरीके सिखाए ना कि वालिद के साथ कैसे रहो। तो ये सारे अंदाज हैं, और सलाम उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये हमने सिखाना है बच्चों को, हमने खुद भी ऐसे करना है, और इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी फिर ऐसे करेंगे। और कुछ फैमिलीज के अंदर इतना रख रखाव अदब और लिहाज है कि आंखें उठा के पेरेंट्स को नहीं देख सकते, अभी तक भी नहीं देख सकते, बात नहीं जोर से की जाती पेरेंट्स के आगे। एक खातून एक भी डॉक्टर है, मुझे बता रही थी कि मैंने कभी अपने वालिद की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। जब वो बीमार हो गए, बेड रिडन हो गए, सो रहे होते थे, तो मैं जाके उनके सर में तेल भी लगाती, कंघी भी करती, उनके प्यार भी करती, माथे पे हाथ भी फेरती, लेकिन जब वो जाग रहे होते थे तो मैं उनकी आंखों में डाल के आके बात नहीं कर सकती। इतना प्यार, अदब, अदब है ये। मुझे याद है हम लोग भी कभी ऐसे फेस टू फेस कभी नहीं। और आज के बच्चों का हाल ही और है, तो था जितना ज्यादा फ्रेंडली हो गए पेरेंट्स, उतने ही ज्यादा अदब खत्म हो गए। खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से, फिर जाके मामलात सुधरेंगे। तो ये सारे तरीके जो है वो हमें जो है वो सिखाए हमारे दीन ने। हाथ मिलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ मिलाओ, इससे दिल जाता रहता है, कीना जाएगा। एक तो गुनाह झड़ते हैं और दूसरा कीना खत्म होता है। तो ऐसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन मैं अवॉइड शेर की निगाह से देखा। कैसे हाथ मिलाते हैं? यानी ऐसे जब कोई आता है ना भाग के, तो ऐसे हाथ मिलाते हैं दोनों हाथ। ठीक है, मर्दों से भी नहीं जी, वही तो मर्दों से क्यों हाथ मिलाना है? वहाँ ऐसे सबके साथ। तो आप उनको कह दें, आप उनको इशारे से कर दें। आपको अगर जैसे कि कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल चल रहा होता है कि मर्द भी जो है वो आगे औरतों के साथ हाथ मिला रहे होते हैं। हमने सीख लिया है कि नहीं मिलाना। अगर कोई आगे करता है तो उसको जैसे आदाब करते हैं ना, सर आप करके ऐसे ऐसे करते हैं। बाजी देखे महर बूढ़े अगर हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके आगे सर करते हैं ताकि वो आपके सर पे प्यार देते। बाजी अपनी आदतें खुद चेंज करवाएं, या ऐसे ऐसे कर दें या सर पे प्यार लें बड़ों से, ताकि आपकी जिस्म पे तो नहीं टच हो रहा, सर के ऊपर ही वो हल्का सा हाथ रखें। आहिस्ता आहिस्ता को खुद ही समझ में आ जाएगा ये दूर रहती है, इसको खुद ब खुद दूर कर देंगे। समझ आ गई है बाजी ना? अपना हाँ, भाई बाप चचा ससुर उन अगर वो हाथ मिलाते हैं तो उनसे भी नहीं मिला। हाथ भाई से तो मिलाएं, नहीं, वो महरम रिश्ता महरम है। हाँ, चचा भाई चचा भाई बाप रिश्तों से ससुर मिलाएं। ये आपके महरम है, इनसे आप ठीक है, करें। हाँ। लेकिन ससुर भी बाप की तरह हाँ, है, बिल्कुल। बाप भी बाप की तरह है, तो बाप है तो आप उनसे क्या करेंगे? बेहतर है कि आप सर पे प्यार लें। समझ आ गई? महरम रिश्तों से हाँ जी, बेटे को मिलना हो तो बेटे को प्यार करें, उसका चेहरे पे चूमे, उसके माथे पे चूमे, हाथ पकड़ के चूमे, इजहार ही करना है ना, लेकिन सीने से नहीं लगाना। मैं तो ज्यादा सिर्फ कहने का मतलब है मुआनका सीने से नहीं लगाया जाए। औरत औरत से करेगी तो करें, चूमे, बेटे आके चूमे माँ को, सीने से नहीं लगाया जाएगा। माथा चूम ले, सब चूम मेरा सिर्फ कहने का मतलब था, मुआनका की डिटेल में मैंने आपको समझाया था। औरत औरत से करेगी। आप सल्लल्लाहु उन मर्दों से करते थे जो उनके रिश्तेदार होते थे, ब्लड रिलेटिव्स होते थे। बाकी सहाबा कराम के साथ आपका मुआनिका का तरीका नजर नहीं आता। समझ आ गई? चूमते हैं, ये गाल चूम लिया लेकिन सीना नहीं मिलाया। जो माएँ टांगे तो वो आती रहती मेरे
कोई फर्क नहीं पड़ता, करवा सकते कई हैं। सवाल तो कराए थे, अच्छा नहीं लगता है तो तर्जुमा है तो वो अब आप ऐसे नहीं बच्चे खिलफत कर रहे हैं माँ चलिए जी, अब हमारा ये खत्म हो गया है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो माबूद है कि उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही, अलबत्ता वो जरूर जमा करेगा तुम सबको क़यामत के दिन जिसके आने में कोई शक नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से सच्ची बात बढ़कर और किसकी हो सकती है। फमा लकुम फिल मुनाफ़िक़ीना फ़िअतैनि, ये अब जल्दी से इसमें से गुजरते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी ज्यादा डिटेल नहीं है। फमा लकुम फिल मुनाफिकीना, बस क्या हो गया है वास्ते तुम्हारे मुनाफिकों के बारे में, फ़िअतैनि यानी उनके दो गिरोहों के बारे में, मुनाफिकों के गिरोह के बारे में तुम्हें क्या हो गया है कि तुम क्या समझते हो कि वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो बिल्कुल ही उनको उलट दिया है उन्होंने जो कमाया है, यानी उनकी बुराइयां जो उन्होंने कमाई थी उन बुराइयों की बदौलत अल्लाह ने उनको बिल्कुल उल्टा दिया है। तुम्हें क्या हो गया कि तुमने मुनाफिकों के बारे में दो किस्म की बातें सोच ली हैं कि दो ग्रुप्स हैं, एक फलां ऐसे हैं और फलां वैसे हैं। ये क्या बात बताई जा रही है? ये बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए थे ना मदीना, तो मक्का के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिजरत नहीं कर सके थे। किसी के पास इतना माल नहीं था, किसी के पास इतने असबाब नहीं थे, किसी के रिश्तेदार नहीं अभी आए थे और वो बेचारे नहीं जा सकते थे अपनों को छोड़कर, तो अब वो वही मक्का में ही आबाद थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है कि इन लोगों के बारे में अल्लाह उनको क्या कह रहे हैं? जिन्होंने हिजरत नहीं की थी, मुनाफिक। अल्लाह उनको मुनाफिक कह रहे हैं कि जिन्होंने हिजरत नहीं की थी, और मोमिनों को कह रहे हैं कि तुम क्या उनके बारे में दो किस्म की राय रखते हो? क्या तुम चाहते हो तुरीदूना अन तहदू मन अल्लाह, तुम ये चाहते हो कि तुम उनको हिदायत दे दो जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया। यानी अल्लाह अगर हिदायत देना चाहता तो अल्लाह उनको हिदायत दे सकता था और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बाकी सहाबा कराम की तरह आ सकते थे, लेकिन अगर वो नहीं आए तो फिर तुम ये समझते हो कि तुम उनको हिदायत दोगे कि वो क्यों नहीं आए? अल्लाह उनको गुमराह कर चुके तो तुम भी उनको हिदायत नहीं दे सकते। वमन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। वतु लौ तकफुरूना कमा कफरू, और अक्सर उनमें से ऐसे चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर है इस तरह तुम भी काफिर हो जाओ। फतकूनूना सवाअन, तुम उन्हीं तरह काफिर तुम भी हो जाओ, अगर वो काफिर हैं तो तुम भी उसी तरह से कुफर करने लग जाओ। फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया, बस हरगिज़ उनको अपना दोस्त नहीं बनाना। हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत ना करके आ जाए। फ़इन तवल्लौ, बस अगर वो मान फिर जाएं, फ़ख़ुज़ूहुम, यानी अगर वो हिजरत से बाज रहे, हिजरत करके नहीं आते, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो मुनाफिक हैं, उनको अगर अल्लाह ने हिदायत नहीं दी तो तुम भी उनको हिदायत नहीं दे सकते। तुम ये मत कहो कि वो फलां वजह से नहीं आ सके या फलां वजह से नहीं आ सके। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो मुनाफिक है। उन लोगों को कहा जा रहा है मुनाफिक जो हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना नहीं आए थे, और ये कहा जा रहा है कि वो खुद भी मुनाफिक है और वो ये भी चाहते हैं कि तुम भी वैसे ही हो जाओ, तुम्हें भी वो कहते हैं कि तुम भी ऐसे ही कर लो। अल्लाह ने उन लोगों के लिए सख्ती से कह दिया है कि उनको हरगिज भी अपना दोस्त नहीं बनाना जहाँ तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाएं। तो दियारे कुफर में रहने वाले वो तमाम लोग अगर वो हिजरत करके दियारे इस्लाम में नहीं आते तो अल्लाह की नजर में वो मुनाफिक है, जब तक कि वो हिजरत करके नहीं आ जाते। बहुत सख्त बात है जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दी। ये आजकल के जमाने में दारुस्सलाम के अंदर आज को यहाँ से भाग भाग के वहां जा रहे हैं, आज तो यहाँ से भाग भाग के वहां जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो लोग जब तक नहीं आ जाते, वो क्यों नहीं आ रहे थे? दुनिया की वजह से नहीं आ रहे थे ना, अपना माल नहीं छोड़ सकते थे, कारोबार नहीं छोड़ सकते थे, अपने प्यारे नहीं छोड़ सकते थे। पीछे हम सूरह तौबा में हमने पढ़ा ना, ये क्राइटेरिया क्या था कि जब तक तुम्हारे बाप, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माल, तुम्हारे घर तुम्हें अल्लाह की उसकी राह और जिहाद से ज्यादा महबूब नहीं है ना, तो बस फतरब्बसू,
फिर तुम दफा हो जाओ, इंतजार करो हत्ता याती अल्लाह बिअमरिही, जब तक कि अल्लाह ताला अपना फैसला ना लेकर आ जाए। तो अल्लाह ताला ने तो पूरा का पूरा ईमान का क्राइटेरिया मुझे और आपको बता दिया, मोहब्बतों के पैमाने अल्लाह ने वहाँ हमें सिखा दिए थे। और यहाँ साफ बता दिया है कि अगर वहाँ पर लोग दियारे कुफर में मौजूद हैं, नहीं आ रहे दियारे इस्लाम के अंदर हिजरत करके, तो उनके साथ दोस्ती मत करना। अल्लाह आगे फरमाता है फ़इन तवल्लौ, बस अगर वो फिर जाएं यानी नहीं बाज आएं, हिजरत ना करें, फ़ख़ुज़ूहुम, पर उनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम, उनको कत्ल करो, हज़ैसु वजदतुमूहुम, जहाँ भी तुम उन्हें पाओ, वला तत्तख़िज़ू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार मत बनाना। यानी ये इतना सख्त हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से जो यहाँ पर आया है कि दारुस्सलाम की तरफ से ओपन इनविटेशन मौजूद होने के बावजूद भी अगर लोग दारुल कुफ्र में रहने को तरजीह दें, तो अल्लाह ने एक तो उनको बोल दिया कि वो मुनाफिक है, दूसरा ये कह दिया उनके साथ हरगिज़ भी विलायत मत करना, तीसरा कह दिया कि अगर वो हिजरत से बाज ही रहे और नहीं आना चाहते फिर उनके साथ कताल करो, जहां पकड़ो मारो उनको। तभी तो वहां से जब लोग आते थे उनकी तरफ से लड़ने के लिए आते थे और यहाँ से मुसलमान के साथ कताल करते थे। अल्लाह ने कह दिया उनके साथ वलायत नहीं करना, ये उनके ईमान की कमी है कि वो नहीं आ रहे। तो जो जहाँ से उठ के जा रहे, सोच लीजिए उनके बारे में फिर अल्लाह ताला का क्या हुक्म होगा। अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, सिवाय उन लोगों। अब कौन लोग हैं जो इससे मुस्तस्ना है? यसिलूना इला कौमिम, वो जो मिल गए हैं उस कौम की तरफ, बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन, कि तुम्हारे और उनके दरमियान मुआहिदे हुए हैं। औ जाऊकुम हसिरत सुदूरुहुम, या ये कि वो मुनाफिक भी इससे मुस्तस्ना है जो तुम्हारे पास आते तो हैं लेकिन हसिरत सुदूरुहुम, वो लड़ाई नहीं करना चाहते, लड़ाई से दिल बर्दाश्त हुए हैं। आई युकातिलूकुम, ये कि वो तुमसे कताल करें, और युकातिलू कौमहुम, या वो कताल करें उनकी कौम से। यानी अल्लाह ने कह दिया वो मुनाफिक भी इससे बड़ी मुस्तस्ना है, आज़ाद हैं, यानी वो इसमें नहीं आते, जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई नहीं करना चाहते। तुम्हारे पास आते हैं उनकी तरफ से लड़ने के लिए, लेकिन असल में वो लड़ाई करना नहीं चाहते। वो बेचारे इतने मजबूर थे कि उनके पास कोई और चारा ही नहीं था, वो किसी तरह भी नहीं आ सकते थे। मिसाल के तौर पे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हजरत ज़ैनब जो हजूर की बेटी थी, दिल में उनके ईमान था लेकिन वो नहीं आ सकती थी अपने शौहर को छोड़कर। इस तरह कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं इंसान की कि वो चाहकर भी नहीं आ सकते, लेकिन वो लड़ाई करना भी नहीं चाहते, लड़ना भी नहीं चाहते। कुछ ऑन द अदर हैंड वो होंगे जो बढ़ बढ़ के मुश्रिकीन के साथ मिल कर आपके साथ लड़ने के लिए आएंगे। तो तीन तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो कि जिहाद करके हिजरत करके पलट के आ गए, इतना पक्का ईमान था। कुछ वो थे जो वाकई मुस्तज़अफ़ीन थे, इतने कमजोर थे कि वो बिल्कुल भी किसी तरह की असबाब नहीं पाते थे हिजरत के। तीसरे किस्म के वो लोग हैं जो असबाब भी है, सब कुछ भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दुनियावी माल, इज्जत, ओहदा, लालच की गर्ज से वो जगह छोड़कर आके मिलते नहीं हैं। उधर भी रहते हैं, मुश्रिकों के साथ लड़ाई, मिलते भी हैं तुम्हारे खिलाफ। उनको अल्लाह कह रहा है ये वो मुनाफिक हैं जो आस्तीन के सांप हैं, थाली के बैंगन हैं, इनको जहां पकड़ो मारो, लड़ो, कताल करो, जब तक कि वो हिजरत नहीं करके आ जाते। ऐसे थर्ड वाले जो कैटेगरी आपको बताई, उस मुनाफिक के साथ किसी किस्म की वलायत नहीं करनी। हाँ, अगर किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि जिस सरजमीन के हुक्मरानों के साथ आपका और उनका मुआहदा है कि कताल नहीं होगा, वो भी अमन और सुकून से, आप भी अमन और सुकून से, फिर उनको नहीं मारना, फिर लड़ना। ये मुसलमान है, मुसलमान होने के बावजूद आपको उनके तीन रवैये बता दिए ना। देखिए जो आजकल के सिनेरियो में, वही मैं भी आपको बता रही थी। अब जैसे कुछ लोग हैं इंग्लैंड में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं। अब इंग्लैंड से पाकिस्तान का मुआहदा है ना कि लड़ेंगे नहीं वो हमसे, हम नहीं उनसे लड़ेंगे। अब हमारा उनके दरमियान आपस में हुकूमतों का मुआहदा है। अब वो किसी वजह से वो वहां पर रह रहे हैं
اور وہ نہ ہم سے لڑتے ہیں نہ ہم سے لڑنے آتے ہیں, نہ وہ کوئی فتنہ انگیزی کا معاملہ کرتے, ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ ایسے مسلمان ہیں کہ وہ اس غیر مسلم کنٹری میں رہنے کے بعد انہی کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے اگینسٹ, مسلمانوں کے اگینسٹ, پھر ان لوگوں سے لڑو, جہاں پکڑو جہاں لیکن پاؤ. ان کو منافق کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اتنے اچھے مسلمان ہوں نہیں دل کے لیکن کون سے لوگ جو ادھر رہ رہے ہیں, مطلب جو رہ رہے ہیں اور وہ لڑائی نہ کرنا چاہتے ہیں نہ کر رہے ہیں, ان سے نہیں لڑنا. جو تیسری کیٹیگری ہے, انہی کا جو ساتھ ان دیا کا ساتھ دے رہے ہیں وہ نان مسلمز ہیں اور وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, کہہ رہے کہ ہاں یہ تو تمہاری حکومت بالکل ٹھیک کر رہی ہے ہمارے اگینسٹ, ہم مسلم سمجھ آئے. میری بہن ہے وہ یو کے میں رہتی ہے, اس کی فیملی ہے, وہ سب نہ لڑتے ہیں نہ لڑائی کرتے ہیں نہ لڑنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں, ان کو نہیں مارنے کا حکم. میرا بھائی ہے, کہاں انہیں منافق ہے. نہیں یہ وہ مجھے لوگ لگا بھی, تھوڑا سا میں confused ہو رہی ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اس وقت کی بھی ہے, یہ ابھی بھی بات ہے, ابھی بھی بات ہے. ساتھ دیتے ہیں. ان کو ساتھ ہاں, ان کے اندر ایمان کی کمزوری تو کہی گئی ہے نا. کیوں ہے؟ کیا کمزوری ہے ہماری؟ ہاں جی, اب آپ دیکھ لیں, جب انڈیا کا دیکھ لیں نا, یو کے کو چھوڑیں آپ, انڈیا کو دیکھ لیں. اب جب انڈین آرمی میں کیا مسلمان نہیں شامل؟ انڈین آرمی میں مسلمان شامل ہے نا. جب پاکستان سے لڑائی ہوگی تو وہ حملہ کریں گے. کریں گے نا, تو ان کو جہاں پکڑو گے مارو, ان کو قتل کرو, ان سے دوستی نہیں کرو. ایسے انڈینز جو نہ لڑتے ہیں نہ کسی کا فتنہ انگیزی کرتے ہیں, ایمان کی ان کی کمی ہے, ان کے اندر ایمان کی کمزوری ان کے اندر ہے. اگر وہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ ظالم ہے, جو پیچھے میں ہم نے پڑھا تھا, یہ مستضعفین فی الارض ہیں, اور وہ پکار رہے ہیں کہ ہمارے یہاں رہنے والے ظالم ہیں, ہم پر ظلم کر رہے ہیں, تو تم کیوں نہیں جاتے ان کی مدد کے لیے؟ جیسے کشمیر کے لوگ, ہمیں حکم ہے کہ جاؤ ان کی مدد کر کے ان کو وہاں سے نکالو, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دین پر چلے, لیکن ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ ان کو اسلام کو فالو نہیں کرنے دیا جا رہا. ان کو نہیں کہا گیا منافق. انڈینز تو کہتے ہیں جاؤ کشمیر چھوڑو, اگر جاؤ پاکستان, لیکن وہ نہیں جانا چاہتے. وہ ان کی جگہ ہے نا, وہ ان کی جگہ, وہ تو اس کی ڈسپیوٹ کی بات تھی. میں آپ کو ایک کانسیپٹ کی بات بتا رہی ہوں کہ اگر وہ وہاں پر رہتے ہوئے ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو ان کی مدد کرنا سب پر لازم ہے. لیکن اگر وہ وہاں پر رہ رہے ہیں, ہم نے جانا ہے ان کی مدد کے لیے, ہم نے وہ پیچھے پڑ چکے ہیں نا, ہم نے ان کی مدد کے لیے جانا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری اور اس کی قوم کے درمیان آپس میں ایسا معاہدہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑو گے, تو ان کو تم کچھ نہیں کہو گے, پھر تم انہیں کچھ نہیں کہو, ان کو چھوڑ دو ان کے ہاتھ پر, پھر اللہ جانے وہ جانے. جیسے کہ میں نے آپ کو انگلینڈ کے بارے میں بتایا, ٹھیک ہے, انگلینڈ رہنے والے جو بھی مسلمان ہیں, منافق نہیں ہم ان کو کہہ رہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو اللہ کی راہ, اللہ کے اوپر. ہاں, وہ جو لڑتے ہیں, فتنہ انگیزی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے کود پڑتے ہیں, پھر ان کو جہاں پکڑو مارو. تو یہ بالکل ایک لاجیکل بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہے. جن کو نہیں پہ قرآن کی آیات کا علم ہوتا ہے, یا جو اس کے پیچھے ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے, وہ قرآن کی انہی آیت کو پکڑ کے کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن ٹیررزم کا دین ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مارو پکڑو, جہاں وہ ملتے ہیں ان کو مارو. قرآن تو اپنے لوگوں کو مار رہا ہے. اسی لیے میں نے اتنا ٹائم لگایا آپ کے اوپر کہ آپ کو یہ تینوں چار چیزیں کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کرو. اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ, اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ, پس ان سے علیحدہ ہو جاؤ. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, پس نہیں يُقَاتِلُوكُمْ, وہ لڑیں گے تم سے. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, اور وہ ڈالیں گے تمہاری طرف سلامتی. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, پس اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. محاورے سے پڑھ دیتی ہوں, آپ آرام سے سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں جس طرح تم خود کافر ہیں, اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ, تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائے. اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو, ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا.
البتہ وہ منافق اس سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں لڑائی سے دل برداشتہ ہے, یعنی نہیں لڑنا چاہتے, نہ تم سے لڑتے نہ چاہتے اور نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. تم خواہ مخواہ کسی کے اوپر دست درازی نہیں کرو گے جب تک کہ وہ تمہارے سے نہیں لڑیں گے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو منافق ہی لیبل کیا ہے جو نہیں آتے. جب دارالسلام میں اوپن انویٹیشن ہے ہجرت کی تو ہجرت نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلا منافق کہہ دیا ہے. اس وقت تھا. آج اوپن انویٹیشن کس کس کے لیے کچھ ملکوں نے دی ہے, کچھ ملکوں نے نہیں دی تھی. اب ہمارے یہاں سے جو اٹھ کے وہاں پہ چلے گئے ہیں تو ان کے لیے تو وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے نا, وہ لوگ تو واپس آئے نا اپنے طرف, اور اگر وہ نہیں آتے تو ان کو تو پھر یہ نفاق تو ان کے اندر ہے نا. جو جاب کرنے کے لیے جاتا ہے یا جو پڑھنے کے لیے جاتا ہے یا جو تبلیغ کے لیے جاتا ہے, صرف ان 3 پرپزز کے لیے نان اسلامک اسٹیٹ میں جانے کی رہنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر وہ رہتے ہیں تو ان کے ایمان کی کمزوری, جاب کے لیے, پڑھنے کے لیے یا پھر تبلیغ کے لیے. جاب کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ جی کمائی کرنے کے لیے ایسے جائیں, ہاں کچھ عرصے کے لیے جا کے, وہ بھی پہلے اپنے ملک میں آپ دارالسلام میں اپنے لیے جو ذریعہ معاش ڈھونڈیں. اگر نہیں ملتا تو پھر تو آپ کو ہر جگہ ڈھونڈنا ہے نا, رزق اللہ نے آپ کا کہاں رکھا ہے. ہاں جی, نہیں جانا یہ بھی نہیں جائز نہیں. ہاں جی, یہ بھی جائز نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. ہم اسی چیز کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی کریں گے کیونکہ پورے کے پورے آگے آیات میں نا وہ واقعات آ رہے ہیں. تو میں نے بھی تھوڑا سا اس لیے ٹچ کر لیا اس کو تاکہ آپ لوگ اس کو گھر میں بھی تھوڑا سا سوچیں اور اگلی کلاس میں بھی نا اس کو ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین ثم آمین. نیشنلٹی کے لیے جائز